अस्सलाम वालेकुम। बच्चों आवाज़ आ रही है आप? वालेकुम अस्सलाम सर। जी सर, आ रही है। Okay, so we were talking about the research design, and we said on the basis of number of contacts with the study population, we can categorize design into थ्री cross-sectional, before and after, and longitudinal. So if we see cross-sectional, what are the characteristic of? So we have to give name to our study according to these designs. So if we have one shot or only status study, then it is called as cross-sectional study. It is also called as one shot. One shot because it is done once. We have only one contact with the population, or it is called as status because we just know about status. We don't know about before or after. We don't know about what is happening after this study or what has happened before this study. We are just studying the current situation, so that would be called as status. So purpose of these type of research designs are in order to determine prevalence of any situation, any problem, attitude, and we or any issue that is in a population. So we have to do a cross section. हम क्रॉस सेक्शन करते हैं, पूरी जो पॉपुलेशन है उसको एक ही दफ़ा उसको स्टडी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन. Like we cross section study for the determination of puberty in boys. तो हमने एक सैंपल ले लिया उस स्टडी में से, सो दैट वुड बी कॉल्ड एज क्रॉस सेक्शन. सो दैट वुड टेल अबाउट स्टेटस और प्रेवलेंस ऑफ. जैसे आप लोग सारे प्रेवलेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं तो आप एक दफ़ा कांटेक्ट करेंगे अपनी पॉपुलेशन के साथ. सो क्रॉस सेक्शन विद रेफरेंस टू टाइम एंड पॉपुलेशन. तो आप जो है वो टाइम का और पॉपुलेशन का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं एक दफ़ा एक पॉपुलेशन को. Then what are the advantages of this study design? It would take less time because you have to take one sample from one population, so it would take less time. It would be easy because you have to contact population once, and then it needs less resources with reference to time, human and financial resources, because you have to go to the population once, you have to take sample once and analyze them once. So you would need less resources, human resources, time resources, and financial resources. Disadvantages it has, like it cannot measure changes over time. हमें पता है कि हम क्योंकि एक दफ़ा ही सैंपल ले रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, कितने साल के बाद कितने हार्मोनल चेंजेस आते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर स्टडीइंग प्यूबर्टी, तो हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता चल गया कि किस एज के ऊपर जो है वो हमारे पास क्या प्यूबर्टी आ रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल सकता क्लियरली कि ये जो बॉयज़ जिनके अंदर इस एज के अंदर प्यूबर्टी आई है, इनमें इन्हीं बॉयज़ के अंदर बाकी ईयर्स में क्या चेंजेस आएंगी या आ चुकी हैं. सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज. जैसे आप प्रेवलेंस की स्टडी कर रहे हैं, यू हैव टू स्टडी प्रेवलेंस ऑफ अ सर्टन डिजीज़, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि पिछले साल क्या थी, पिछले मंथ में क्या थी, ठीक है, या अगले साल क्या होगी. फॉर एग्जांपल कोविड जो है उसकी अगर आप प्रेवलेंस कर रहे हैं तो आपको नहीं पता, अभी पता है कि अभी कितनी है पाकिस्तान में, आपको नहीं पता अगले मंथ क्या होगी या उससे अगले मंथ क्या होगी, अगले ईयर्स में क्या होगी. तो दैट वुड नॉट टेल अबाउट चेंजेस ओवर टाइम. तो आप सबकी स्टडीज़ तकरीबन क्रॉस सेक्शनल है, जितने लोग भी कर रहे हैं. दी स्टडीज़ आर वन शॉट और दे आर स्टेटस स्टडी, दे आर क्रॉस सेक्शनल स्टडी बिकॉज वी आर टेकिंग सैंपल वंस. फिर हमने कहा बिफोर एंड आफ्टर. बिफोर एंड आफ्टर आर आल्सो कॉल्ड एज प्री पोस्ट और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट. So in this case, before and after studies, we should have at least two contacts with population with the same respondents that have given data already. We again take data from those samples. उन्हीं subjects से हम data लेंगे या sample लेंगे. So we should have at least two contacts. So purpose of these kind of before and after studies are for to determine changes in situation, phenomena, issue, problem, attitude over time. For example, लास्ट ईयर कितना कोविड था, पिछली जो वेव आई थी उसमें कितनी प्रेवलेंस थी, अब कितनी है, ठीक है. तो हमें पता चल सकता है कि ये जो चेंजेस आ रही हैं दे आर ड्यू टू सर्टन
रीजंस, तो हम उनको टैकल कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई हम एग्जांपल लेते रहे हैं कि स्मोकर और नॉन स्मोकर्स की, तो अगर आप स्मोकिंग करने से पहले हीमोग्लोबिन डिटरमिन की और बाद में की, तो आपको पता चलेगा कि चेंज इन सिचुएशन क्या हुआ, ठीक है, कितनी हीमोग्लोबिन चेंज हुई। दैट इज़ कॉल्ड एज बिफोर एंड आफ्टर ओके स्टडी। सर। So it is used for determination of effectiveness of program. Program could be a medicine, program could be a educational program, could be any training. तो हम किसी rehabilitation center में कोई program हो सकता है. So we have to determine effectiveness of a program or a treatment. उसकी effectiveness जो है वो हम देखने के लिए सोशल साइंसेज वाले इसको, या एजुकेशन वाले एजुकेशनल प्रोग्राम को, कोई सोशल ट्रेनिंग को, और हम जो मेडिसिन से रिलेटेड या बायोलॉजिकल होंगे वो ट्रीटमेंट और एनी इंसिडेंट जो है उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखने के लिए जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं कि कितना इफ़ेक्टिव है, कितना उसने चेंज किया है। तो बिफोर एंड आफ्टर हम करेंगे। टू सेट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल, इसमें है क्या, इट इज़ एक्चुअली टू सेट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। आप दो पॉपुलेशन को दो दफ़ा क्रॉस सेक्शन करते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में तो हमने एक दफ़ा किया, इसमें आप दो दफ़ा करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ टाइम, दो क्रॉस सेक्शन लेते हैं। सो इट वुड बिकम बिफोर एंड आफ्टर। तो इसमें जो एडवांटेजेस हैं इसके वो क्या हैं, इट वुड मेजर चेंजेस और इम्पैक्ट between 2 points of time. And then disadvantages are it is expensive than cross sectional study because you have to take two samples, or you have to take samples 2 times, and then it would take more time as compared to cross sectional because you are again going to take samples 2 times. And then there is a chances of sample withdrawal or change. For example, आपने 10 लोगों का ग्रुप लिया और उनके ऊपर आप स्मोकिंग का इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं। आपने 10 लोगों का ग्रुप बना लिया, आपने बिफोर एंड आफ्टर करना है। तो आपने स्मोकिंग से पहले और स्मोकिंग के बाद, फॉर एग्जांपल आपने स्मोकिंग से पहले 10 लोगों के सैंपल लिए, और जब आप स्मोकिंग के बाद आप सैंपल लेना चाहते हैं तो 2 लोग रिफ्यूज़ कर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम नहीं देते। आपने रैट्स रखे हुए हैं, उनको मेडिसिन देने से पहले आपने सैम्पलिंग कर ली, जब दोबारा सैम्पलिंग करने लगे हैं तो उसमें से 3-4 की डेथ हो गई, ठीक है। सो देयर वुड बी विड्रॉल, लोग अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे या वो अवेलेबल नहीं होंगे इफ़ वी हैव टू टेक टाइम सैंपल्स फॉर 2 टाइम्स। तो इसका ये डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा कि जिस पॉपुलेशन, जिन सैंपल से आपने पहले इंफॉर्मेशन ली है, डाटा लिया है, सैंपल्स लिए हैं, उनसे आप दोबारा लेना चाहेंगे तो उनका नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। देन देयर कुड बी एक्सट्रीनस ओके। वेरिएबल। Extraneous variable जो हैं they could work more in case of before and after studies because you are doing a research in 2 times interval। आप दो उनको इंस्टेंसेस में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक मेडिसिन देनी है, तो आपने पहला जो सैंपल लिया वो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नंबर 1 ने लिया, तो दूसरा जो सैंपल है वो स्टूडेंट नंबर 2 ने लिया। देयर वुड बी वेरिएशन बिटवीन दी सैंपल्स। आपकी जो वेरिएशन आएगी, फॉर एग्जांपल वी डिड हार्मोनल एनालिसिस, और पहला जो सैंपल हमने लिया उसका ब्लड भी किसी और ने लिया, उसका हार्मोनल एनालिसिस भी किसी और ने किया, दोबारा जब हमने लिया तो उसका हार्मोनल एनालिसिस और उसका ब्लड सैंपल भी किसी और ने लिया। देयर वुड बी वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंट पर्सन जो ट्रीट कर रहे हैं, जो सैंपल ले रहे हैं उनकी वजह से। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने आपका 6 मंथ्स का प्रोग्राम है, तो आपने कोई मेडिसिन देनी है, आपने विंटर के अंदर सैंपल लिया ब्लड का, उसमें हार्मोनल डिटर्मिनेशन की, और जब आपने इंटरवेंशन की फॉर 6 मंथ्स और दोबारा किया तो दैट वुड बी समर। तो ये जो टाइम की वेरिएशन है वो भी आ जाएगी। सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एक्सट्रीनियस वेरिएबल, दीज वर ओनली एग्जांपल्स। तो इसका मतलब है कि टाइम डिफरेंस की वजह से एक्सट्रीनियस वेरिएबल बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है। देन देयर कुड बी रिएक्टिव इफेक्ट्स ऑफ प्री टेस्ट इफ़ वी आर फिलिंग अ क्वेश्चनियर। हम क्वेश्चनियर फिल कर रहे हैं, तो किसी से एक पॉपुलेशन से हम देखना चाह रहे हैं कि उनके अंदर जो है वो डिप्रेशन में कितना चेंज आया, उनके अंदर नॉलेज का कितना चेंज आया। अगर हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं
तो उन्होंने एक प्री टेस्ट रन किया होगा जिससे हमें पता चलेगा कि उनको डिप्रेशन है या नहीं है, या उनका नॉलेज कम है या क्या है। जब वो पोस्ट टेस्ट फिल करेंगे क्वेश्चनियर, तो क्योंकि उन्होंने पहले भी वही क्वेश्चन फिल किए हुए हैं, जब वो दोबारा करेंगे तो देन दे वुड हैव रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ दैट प्री टेस्ट। वो उसको सोच के तो उस पोस्ट टेस्ट को टेस्ट सॉल्व करेंगे। सो देयर वुड बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट प्री टेस्ट, उसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो वो फिर दायरा में उस तरह से जो पोस्ट टेस्ट का डाटा उसको प्री टेस्ट इफेक्ट कर सकता है। हमें ट्रू डाटा नहीं मिलेगा, ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कितना चेंज आया। then it would not measure pattern of change over a long time, क्योंकि हम सिर्फ 2 इंटरवल्स में ले रहे हैं, तो लंबे टाइम के लिए हमें नहीं पता चल सकता कि क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, सो बिफोर एंड आफ्टर इट इज having certain advantages. It would measure changes in 2 intervals, but it has a lot of disadvantages because it would be expensive with reference to time, human resource, and financial resources. There would be another disadvantage that is very important is withdrawal or change of mind of the samples. And then there would be extraneous variable because we are taking samples between 2 different time periods. तो इसी तरह से हमें पता है कि अगर हम क्वेश्चनर फिल कर रहे हैं तो इसका रिएक्टिव इफेक्ट आ सकता है ड्यू टू द फर्स्ट क्वेश्चनर दैट वी फेल्ड। आपने कभी अगर कोई वर्कशॉप अटेंड की हो तो उसमें ऐसे ही होता है कि एक प्री टेस्ट फिल करते हैं और फिर वर्कशॉप करवाते हैं और उसके बाद पोस्ट टेस्ट फिल करते हैं, फिर उनको मेजर करते हैं कि प्री टेस्ट में आपका पोस्ट टेस्ट कितना बेहतर हुआ प्री टेस्ट से। तो देन it is not measuring change over a longer time period. Then we have another type of research design that is called as longitudinal. Longitudinal जो है यहाँ पे mention नहीं है, किसी वजह से रह गया। So longitudinal is uh, if we take more than 2 samples from same population, then it is called as longitudinal. It would tell changes over time. So it would tell about the changes for long time period. So there would be many cross sectional studies on the same population. एक ही population है, उससे आप बहुत दफ़ा आप डाटा लेंगे more than 2 times. ठीक है, so it would tell about changes in a variable between many points of time, बहुत सारे points में। इसका disadvantage क्या है? It would advantage is that it would measure changes over longer time period, लंबे time के लिए आपको changes का पता। Disadvantages are same as that of before and after study, that it would be more expensive than even before and after study. It would take more time, the sample draw or change of mind would be more. There would be a lot of extraneous variables because we are taking samples for longer time. There would be many reactive effects, and but advantage is it would determine changes over longer time period. लेकिन डिसएडवांटेज इसके काफ़ी सारे हैं क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। इसका जो है वो जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा होगा, सैंपल विड्रॉल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एडवांटेज ये है इट वुड बी वेरी वैलिड एंड वेरी रिलायबल। So with reference to number of contacts, we had these 3 type of study design. And with reference to period of the study, that is the time period of the sampling, would be 3 type of research design. They could be retrospective, they could be prospective, they could be retro-prospective. So these are the 3 type of research design with reference to time of the study or time of the sample of sample or time of the information that we take for a study. That would be called as so they are retrospective, prospective and retro-prospective. They are English word. हमें पता है इसका मतलब क्या है। Retrospective mean that is things that has happened in past. So retro mean behind. So if we look behind, we see behind, and then we
take that information, it would be called as retrospective study design. So retrospective means when we take a data of a past event, then it is called as a retrospective study. तो आप लोगों की बहुत सारे लोग जो हैं वो आप में से हॉस्पिटल में चले जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अब हॉस्पिटल में अगर आप गए तो आपके पास दो तरीके हैं सैम्पलिंग के। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू डिटरमिन प्रेवलेंस ऑफ अ सर्टन डिजीज़, तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप उनके रजिस्टर में, उनके सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस में जो ऑलरेडी सैंपल्स हैं उनको नोट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो उस वक्त फ्रेश पेशेंट आ रहे हैं उनसे आप डाटा कलेक्ट करें। अगर आप उनके डेटाबेस में से सैंपलिंग करते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन दिस स्टडी वुड बी कॉल्ड एज रेट्रोस्पेक्टिव। और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं जो अभी उनके पास पेशेंट आ रहे हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव। So retrospective is the study of situation phenomena through past data or recalling data. So studies on evolution, history of diseases, they would be called as retrospective studies because they are about past, what has happened already. And prospective are the studies are that are studying situation or phenomena in present or current situation, and the patient that are coming at the time, उस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जो होने वाला है, या फिर that would be called as prospective. And then we have another study that is called as retroprospective study. So most of the retrospective studies, they are, most of the time they are retroprospective study because we take previous data and then we determine what would happen in future. So it is called as retroprospective study. आपने previous year का data लिया और आप next year का trend find out करना चाह रहे हैं, then it is called as Retro. retroprospective. ठीक है, तो retroprospective is study of situation of phenomena through past trends, and then prognosis for future. Prognosis means in order to determine, to guess about future, what would be the, Out. for example अभी हम कहते हैं कि कोविड की जो लास्ट वेव थी उसमें प्रेवलेंस ये थी और नेक्स्ट वेव में ये हो सकती है, उसमें डेथ रेट ये था, नेक्स्ट में इतना हो सकता है, that would be estimation. It is called as retroprospective study. So on the basis of reference period of sample or information, there are three types of study: retrospective, that is about past data; prospective, future, that is present or current situation; and then retroprospective, that is using past data to determine about future. ठीक है, then we have another categorization of the study design or research design, that are about the according to nature of investigation. So according to nature of investigation, we can divide studies into experimental, non-experimental, or quasi-experimental. Quasi-experimental is mean hemi-experimental, semi-experimental, or half-experimental. So experimental and non-experimental, we have to डिफ्रेंशिएट दीज टू टर्म्स। हमें पता है कि हमने ऑलरेडी कभी इस पे बात की कि अगर हमने फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का इफेक्ट देखना है हीमोग्लोबिन पे, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक smokers and non-smokers from population, and then we can take their blood samples and determine hemoglobin and compare between these two groups. That would be एन ईजी टास्क कि आपने पॉपुलेशन में से लिए हैं, आपको नहीं पता वो कितने सिगरेट पीते हैं, या अगर आपको पता भी है आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या खाते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कैसे रहते हैं, सोते कब हैं, जागते कब हैं, आयरन का क्या उनका है, वेट उनके क्या है, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, हम उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इवन हम ये भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते कि वो कितने सिगरेट पियेंगे, कब पियेंगे, ये हम नहीं कर रहे। लेकिन अगर हम ये करते हैं कि 10 लोगों को रिक्रूट करते हैं दैट आर नॉन स्मोकर्स और उनको लैब में लाते हैं और उनमें से 5-5 इक्वल एक टाइप के मैचिंग से, या हम रेंडमाइजेशन से, या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना रेंडमाइजेशन और मैचिंग क्या होती है, मैच करके दो ग्रुप्स के अंदर Yes, sir. ऐड कर देते हैं 5-5 को। उसके बाद हम एक ग्रुप को स्मोकिंग करवाते हैं, दूसरे को नहीं करवाते हैं। जिसको स्मोकिंग करवाते हैं हम उनका टाइम डिटरमिन कर सकते हैं कि उन्होंने सुबह 7:30 बजे स्मोकिंग करनी है। ठीक है, हम उनको नंबर ऑफ़ सिगरेट, टाइप ऑफ और क्वालिटी ऑफ टोबैको, हम उनके जो है वो डाइट का
कंट्रोल जो हम रखेंगे, उनकी भी डाइट का हर तरह से उनको कंट्रोल कर सकते हैं. सो वी कैन मैनिपुलेट आर कंट्रोल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स इन केस ऑफ दिस सिचुएशन, जब हम लैब में ले आए. सो दैट वुड बी कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल. जो हमने नेचर से स्मोकर और नॉन स्मोकर लिए और उनका वहीं पे डिटरमिन किया, ब्लड सैंपल लिए और हमने उनको हीमोग्लोबिन को मैच कर लिया, हम कहते हैं स्मोकर के अंदर ज़्यादा है या कम है, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि हम उसमें कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सके. दोज पीपल दे वर ऑलरेडी स्मोकिंग, they were already taking certain type of diet, they have had a lifestyle. हम उसको चेंज नहीं कर सकते because they are living out of our excess, वो हमारे excess से बाहर हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं. that would be called as non experimental research. तो एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या है? In case of experimental, we have controlled manipulation in independent factors to find changes in dependent factors. That is called as laboratory research. Laboratory research है. Non-experimental, we have to trace changes in independent factor by seeking changes in dependent factor. Independent factors are not in control. They are happening in nature. The phenomena is happening in nature. We are just studying it. nature. We are observing it. हम जैसे एनिमल बिहेवियर को स्टडी करें तो हम उसको अगर लैब के अंदर स्टडी कर रहे हैं दैट वुड बी डिफरेंट, और अगर हम उसको स्टडी कर रहे हैं नेचर में then it would be non-experimental type of study. So there are studies that could be having characteristic of both experiment and non-experimental studies. तो इन दोनों के करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. दी एक्सपेरिमेंट इन नेचर, अगर नेचर के अंदर आप एक्सपेरिमेंट कर लें, दैट इंडिपेंडेंट फैक्टर दे आर नॉट इन कंप्लीट कंट्रोल. कंप्लीटली आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास कुछ उसका कंट्रोल हो, then it is called as quasi or semi experimental. For example, if we have recruited people in natural population, those are smoking or not smoking, तो हम उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दें. फॉर एग्जांपल हम उन्हें कहते हैं कि आपने ये सर्टन टाइप की डाइट खानी है, या हम उन्हें कहते हैं जो स्मोकर्स हैं उन्होंने 10 सिगरेट पर डे स्मोक करने हैं, ठीक है. सो वी हैव कंट्रोल्ड अ लिटिल बिट, बट वी कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग. हम उनके सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते. हम उनकी डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते. हम उनके लाइफस्टाइल के बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, स्लीपिंग और बाकी जो उनके ऑक्यूपेशन है, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. सो दे वुड बी कॉल्ड एज क्वासी or semi-experimental study design. So most of the time we have quasi type of study design in case of these type of research in medicine. So on the basis of nature of investigation we have experimental, non-experimental. Experimental में क्या होगा? It is laboratory research. We have control on all the parameters or all the variables, or at least independent variables of the study. And in case of non-experimental, it is happening in nature. We have little or no control on the independent variables. They are happening in nature. We are just observing their relationship with dependent variable. And in case of quasi, we have half or semi control on the independent variable, or few of the independent variable but not all. That would be called as quasi or semi experimental study. तो अब आप लोग अपनी जो स्टडी है, फॉर एग्जांपल यू आर डिटरमिनिंग प्रेवलेंस ऑफ अ डिजीज, तो ये कौन सी स्टडी होगी? विद रेफरेंस टू नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स विद पॉपुलेशन, दैट वुड बी कॉल्ड एज Cross sectional. cross sectional. So you have to write your study would be cross sectional. Then would it be experimental or non experimental or quasi experimental? Quasi experimental. It would be non experimental because you are taking only data. ठीक है ना, आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट गोइंग टू टेक सैंपल वंस अगेन. ठीक है, आप दोबारा उनसे सैंपल नहीं लेंगे, आप एक ही दफ़ा लेंगे और जो कुछ नेचर में हो रहा है वही आप नोट करेंगे. सो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ स्टडी. ठीक है. और इसके अलावा हमने कहा था कि Okay, sir. विद रेफरेंस टू पीरियड ऑफ द स्टडी, ये कौन सी स्टडी होगी? Retroprospective. इट वुड बी prospective, retroprospective. Retroprospective.
it could be retroprospective if you are taking previous data, and if you are taking fresh data then it would be prospective. अगर अभी पेशेंट आ रहे हैं और उनका आप नोट करें then Prospect. it would be prospective. ठीक है, तो ये आपने अपनी स्टडी को नाम देने हैं क्योंकि आप सबकी स्टडीज जो है वो क्वांटिटेटिव है. सो वी हैव टू गिव दीज 3 नेम्स दैट योर स्टडी इज क्रॉस सेक्शनल, प्रोस्पेक्टिव एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ स्टडी. ठीक है, तो दूसरे लोग Non-experiment. जो लोग Okay, दो sir. दफ़ा डाटा ले रहे हैं, देयर स्टडी वुड बी बिफोर एंड आफ्टर स्टडी. इट कुड बी retrospective or it could be prospective, it could be experimental or it could be non experimental or quasi. तो आपने 3 नाम देने हैं I see, अपनी sir. स्टडी को. in materials and method you have to give these 3 name to your study. ठीक है, Okay, sir. so there could be other designs, हम later on इनको देखेंगे. ठीक है, Okay, sir. ओके. अब किसी का कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन. प्लीज इनकी अटेंडेंस ले लेना आप. और Sir, excuse me. जी जी, सर हमने अभी तक जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो डिस्कस नहीं किए, ना हाइपोथेसिस. हमने एक दिन डिस्कस किए थे. नो सर, मॉर्निंग वालों के नहीं हुए. अच्छा, चलें अब ये कल कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये जो हम आज पढ़ा है सही ना है सर. हमने, ये आपके मिड एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर जो लास्ट टाइम रिकॉर्ड किए थे लेक्चर आपने लास्ट वीक में, सर काइंडली वो अपलोड कर दे ताकि क्लास से पहले पहले मैं उनको सुन लूँ. लास्ट टाइम वो ड्यू टू सिग्नल्स चले कुछ मैं कोशिश खास करता हूँ, समझ नहीं आई थी. मैं कोशिश करता हूँ कि आज जी उनको सर. अपलोड कर दूँ. ठीक है, जी सर, जज़ाकल्लाह सर. काइंडली ज़रूर कीजिएगा. ठीक है, मैं करता हूँ. ओके सर. ओके. ओके. ठीक है बच्चों, ओके कल हम सर, अल्लाह सेफ्टी हाफिज. डिस्कस करेंगे और हम हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्टिव. ओके सर. ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज.